Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to HR Academy. Today's session is for the grade 9 biology students and it is in the continuation of the introduction to biology. Today's SLO is level of organization in the biology. What are the level of organization? First we will define the level of organization. The level of organization refers to the hierarchical structure of biological system from the smallest to the largest. यानी इस level of organization में क्या करेंगे हम सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट टू द लार्जेस्ट लेवल। और इसका पर्पस क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग दीज लेवल्स हेल्प्स इन कॉम्प्रिहेंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड फंक्शनलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे हमें समझने में मदद मिलती है और फिर उसकी फंक्शनलिटी को हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द लोएस्ट लेवल, दैट इज द एटॉमिक लेवल। As you all know that all matter is composed of atoms. In biological system, certain atoms are essential, right? And these certain elements are known as the key bioelements. ठीक है, तमाम मैटर किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। और बायोलॉजिकल सिस्टम में भी कुछ एटम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, यानी लिविंग सिस्टम में मौजूद होते हैं। और इन एलिमेंट्स को, इन एटम्स को क्या कहा जाता है? बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। द नेम ऑफ बायो एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये वो बायो एलिमेंट्स हैं जो बेसिक हैं, यानी लाजमी मौजूद होंगे। इनके अलावा भी अदर बायो एलिमेंट्स आर फाउंड इन द लिविंग सिस्टम, राइट? So the smallest level in the biological organization is atomic level. After atomic level, there will be the molecular level. What happens at the molecular level? Atoms combines to form molecules, which are the building blocks of life. Atoms मिलेंगे, मिलने के बाद क्या बनेंगे? Molecules बनेंगे और फिर molecules will be the building block of life. अगर हम living system की ही बात कर रहे हैं तो there are two different types of biomolecule. Number one, micromolecule, and two is macromolecule. The example of micromolecules are fatty acid, monosaccharides, amino acids, nucleotides, pyrimidines, and purines. And the examples of macromolecules are lipid, protein, nucleic acid, carbohydrates. Micromolecules are low molecular weight compound. इनका molecular weight क्या होता है? कम होता है as compared to the macromolecule. Macromolecule are high molecular weight compound. इनका molecular weight ज्यादा होता है। और micromolecules smaller in size होते हैं, whereas macromolecules क्या होते हैं? They are larger in size. ठीक है? So in living system there are two types of biomolecules. Number one, micromolecules, and the other one is macromolecules. Atoms combines together to form molecules, and then molecules combines together to form the cellular structure, right? The cell is the basic unit of life formed by the organization of biomolecules. और cell का structure अगर आप देखें, you can see over here, ये cell membrane, यहाँ पे हमारे पास cell membrane मौजूद है, then ribosome, mitochondria, nucleus, nucleolus, then cytoplasm and endoplasmic reticulum. ये तमाम ऑर्गेनेल्स बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है? और इन तमाम बायोमोलिक्यूल्स के अकोमोडेशन एक जगह गैदर होने के बाद आपका क्या बनता है? सेल बनता है। सो स्मॉलेस्ट लेवल वाज एटम, देन मॉलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल, एंड देन मॉलिक्यूल्स combine together to form the cell. The next level of organization is tissue level. टिश्यू लेवल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी सेल्स होंगे जो सिमिलर होंगे इन स्ट्रक्चर और वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, देयर आर टू टाइप ऑफ टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज जिनका काम कनेक्टिविटी का है, कनेक्ट करने का है, जोड़ने का है। एपिथेलियल टिश्यूज, इनका काम क्या होता है? ये लाइनिंग होती है, अपर लाइनिंग होती है, आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है, इंटरनल ऑर्गन्स में भी और फिर आपकी स्किन पे भी लाइनिंग मौजूद है, इनमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। देन मसल्स टिश्यूज होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। देन नर्वस टिश्यूज होते हैं जो आपके ब्रेन सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो टिश्यू सिस्टम क्या है? टिश्यू लेवल क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है दैट विल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। नेक्स्ट लेवल इज ऑर्गन लेवल। एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से
हमारे पास टिश्यू आ गए, देन टिश्यूज के बाद जो लेवल आएगा वो कौन सा लेवल होगा, ऑर्गन लेवल है। ऑर्गन लेवल पे क्या होता है, स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिफरेंट टिश्यूज हैं लेकिन वो वर्किंग जो है वो टुगेदर करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में करेंगे टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। उनका फंक्शन कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन is the collection of various tissues which are specialized to perform the nervous function. Then lungs is the collection of various tissues which are responsible for the exchange of gases and the cellular respiration. Then heart, liver, kidney. These all are organs are the collective collection of various tissues which are specialized for the specific function like digestion or excretion. Okay, the next level is organ system level. When organ has been formed, there will be definitely a system to perform the specific task, specific function. So a group of organs that work together to perform complex functions. अब यहाँ पर फंक्शन की जो नेचर है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे जो मिलने के बाद एक सिस्टम बनाएंगे, देन दैट सिस्टम विल बी परफॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन बोथ, और ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वेरियस ऑर्गन्स आर अलाइन टुगेदर एंड कनेक्टेड एज वेल। ठीक है, माउथ से डाइजेस्टिव सिस्टम आपका शुरू होता है और रेक्टम देन एनस पे आपका खत्म हो जाता है, और यहाँ इन बिटवीन माउथ एंड एनस, यहाँ पर एनस आ जाता है। माउथ एंड एनस के अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स आर देयर। ठीक है, एसोफेगस, लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तमाम मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं जिसका फंक्शन जो है वो क्या है, टू परफॉर्म द डाइजेशन as well as absorption of the food and removal of the waste material through the anus. So a group of organs that work together to perform the complex function, this level is called the organ system level. The next is organism level. Organ system, organism like a complete living entity capable of independent existence. यानी ऑर्गन सिस्टम क्या होंगे, एक जगह कंबाइन होने के बाद एक कंप्लीट एंटिटी को डेवलप करेंगे जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक पांडा मौजूद है, ये एक कंप्लीट लिविंग एंटिटी है जिसके पास वेरियस ऑर्गन सिस्टम हैं जो हेल्प आउट कर रहे हैं इसकी लाइफ को सस्टेन करने में। ओके, द नेक्स्ट लेवल इज पॉपुलेशन लेवल। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो इंडिपेंडेंटली अलोन नहीं रह सकता। ठीक है, वो अपने साथ सराउंडिंग में कुछ उसका दूसरे लिविंग पॉपुलेशन, दूसरे लिविंग बींग्स के साथ एक रिलेशनशिप होता है, वो अपने जैसे जानदारों के साथ रहना पसंद करता है। सो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरियाज, यानी अगर ऐसा एक ग्रुप है जिसमें सेम स्पीशीज ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और वो एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं, तो दैट लेवल विल बी नोन एज पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, अब आप इस पिक्चर में देखिए, नंबर ऑफ पांडा आर देयर। ठीक है, वो एक जगह पर रह रहे हैं, उनकी एक, इनका आपस में एक इंटरेक्शन है। ये जो लेवल है, लेवल क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन लेवल कहलाएगा। नेक्स्ट इज द कम्युनिटी लेवल। अब एक पर्टिकुलर एरिया में सिंगल टाइप ऑफ स्पीशी नहीं रहती है। लाइक अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें, आपकी एक अलग पॉपुलेशन है, आपके साथ ही आपको इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, बर्ड्स भी मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे और दूसरे एनिमल्स भी मिलेंगे। तो what is community? Different populations of species living and interacting in a particular areas. ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज, सिंगल टाइप ऑफ स्पीशी की बात नहीं हो रही है, डिफरेंट स्पीशीज हैं और उनकी पॉपुलेशंस हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं। लाइक अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं, यहाँ पे फिश की आपको स्पीशी नजर आ रही हैं, इसके अलावा आपको कौन कौन सी स्पीशीज नजर आ रही हैं, पॉपुलेशंस किसकी नजर आएगी, टैडपोल है, फ्रॉग है, फ्लाइज हैं, वाटर वीड्स हैं, स्नेल्स हैं। ठीक है, तो ये तमाम लिविंग बींग्स ये डिफरेंट स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं लेकिन ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में मौजूद हैं, राइट। तो इस वक्त ये इनकी क्या कहलाएगी, कम्युनिटी कहलाएगी। दैट लेवल विल बी नोन एज द कम्युनिटी लेवल। देन इकोसिस्टम लेवल। अब किसी भी कम्युनिटी में रहते हुए
लिविंग सिस्टम का ताल्लुक सिर्फ लिविंग बीइंग के साथ नहीं होता है। लाइक अगर आप अपने आप को देखें तो इफ यू आर sitting on a chair, you are having an interaction with the non-living subjects, ठीक है, non-living objects, और you are having a pen in with you, you are having water with you, और आप फूड भी ले रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस इन्वायरमेंट में आप मौजूद हैं वहां पर आपका रिलेशनशिप है आपके इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट, देन दिस लेवल विल बी नोन एज इकोसिस्टम लेवल, ठीक है। अगर आप इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे जो भी लिविंग क्रिएचर मौजूद हैं उस लिविंग क्रिएचर का अपने माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में एयर, वाटर, लाइट, इन सब के साथ एक इंट्रैक्शन है। प्लांट्स को अगर लाइट नहीं मिलेगी दे कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड विदाउट वाटर नन ऑफ द लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव ऑन द अर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब है लाइफ इज डिपेंडेंट, इन सम केसेस लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये लेवल जहां पर लिविंग सिस्टम का नॉन लिविंग सिस्टम के साथ एक इंटरेक्शन है, दैट लेवल विल बी नोन एज द इकोसिस्टम लेवल। अब लिविंग और नॉन लिविंग के लिहाज से इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मीन्स जितने भी लिविंग स्पीशीज किसी भी इन्वायरमेंट में मौजूद हैं वो तमाम क्या कहलाएंगी, बायोटिक फैक्टर कहलाएंगी। लाइक फंगी, प्लांट और प्रोटेस्ट हो गए, एनिमल्स हो गए, आर्की हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तमाम कौन से कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक फैक्टर हैं। और एबायोटिक फैक्टर में आपके एयर हो गई, सैलिनिटी हो गई, सॉइल, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स, पीएच, ह्यूमिडिटी, ये तमाम जो फैक्टर्स हैं दे आर हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द बायोटिक फैक्टर। ये फैक्टर क्या कहलाएंगे, एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम कहलाएंगे। देन बायोस्फीयर इज द highest level in the biological hierarchy system, that is the global ecological system integrating all living beings and their relationships। यानी इस लेवल पे तमाम इकोलॉजिकल सिस्टम आ जाएंगे, तमाम लिविंग बींग्स आ जाएंगे, उनका आपस में किस तरह का इंट्रैक्शन है, ये तमाम इंट्रैक्शंस कलेक्टिवली जब हम देखेंगे दैट लेवल विल बी नोन एज द बायोस्फीयर लेवल, ठीक है। और इसकी एक्सटेंट क्या होगी, that will be the portion of earth where life exists including land, water and atmosphere, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट और हाईएस्ट लेवल होगा हायरार्की का, जिसे हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। सो समरी ऑफ टुडेज सेशन इज, हमने अपनी आज की जो बात शुरू की थी वो कहाँ से स्टार्ट की थी, एटॉमिक लेवल से स्टार्ट की थी। एटम्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, देन मॉलिक्यूल्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म सेल, सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेज होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं। देन cells combines to form the tissues, then tissues collectively combine together to perform the specific function and construct an organ, then organ से फिर क्या होता है, body system बनता है, then body system से complete organism वजूद में आता है, then organism construct a population, then population constructs a community, then communities construct an ecosystem, and various ecosystem are found in a biosphere. Biosphere, the region of earth where life exists. So this is the complete organization level of the living system or in the biology. Okay, so the conclusion of today's session is understanding the level of biological organization help in studying the complexity of life forms. From atoms to the biosphere, each level plays a crucial role in the sustainability of the life. Thank you for watching the video. If you have any question, please do write your question in the comment box. We'll definitely answer your question. Please don't forget to like, comment and share. Thanks for watching. Take care of yourself. Allah Hafiz.